to be with you all today, and I would like to give my sincere thanks and gratitude to the Supreme Being for giving such a wonderful opportunity to me. So, as we all know, Shanti Sarovar, it's a perfect place for relax session, for recharge, and जैसा कि हम सबको पता है कि we can experience immense peace in this campus, and it has helped thousands of people to better their life so that they can enhance their life and they can take power directly from the Supreme Being. So Brahma Kumaris Shanti Sarovar एक ऐसा प्लेस है जो बहुत सारे सेमिनार्स, कोर्सेज, वेबिनार्स कंडक्ट करता रहता है और संडे इवनिंग टॉक उसका एक रेगुलर फीचर है. तो एवरी संडे हम मिलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं. एंड टुडेज टॉपिक इज सुपर माइंड, सुपर फ्यूचर. सो हाउ कैन वी मेक a mind as a super mind, or how can we create super future from super mind? So to unwrap today's topic, we have a very eminent speaker today with us. So we would like to invite today's speaker. Today's speaker is Brother SHAKTIRAJ. So welcome to Shanti Sarovar, brother. Thank you, sister. Thank you. And I would like to introduce, first of all, I would like to introduce Brother SHAKTIRAJ. Brother SHAKTIRAJ is a eminent life coach, motivational speaker, meditator, and corporate trainer, as well as international trainer. And he has conducted lots of programs in different countries. And he conducted programs for a lot of celebrities also. So we are so fortunate that today brother is with us, and brother is a recipient of many awards, like one of the award is like Smriti Vikas Ratna. This is a Sunrise Peace Award, and he got that in 2010. And another is Youth Icon Award. And the most fascinating thing about brother is he is the youngest spiritual trainer in mind management and memory. So let's welcome SHAKTIRAJ brother. Over to SHAKTIRAJ brother. Thank you. So we know it very well how to charge our bike. We know it very well how to charge our car. We know about how to charge our body, but we don't know how to charge our mind. If we will not charge our mind, how we can survive even in this life? How we can survive? So हम जानते हैं कि हम सब कुछ चार्ज कर रहे हैं पर हम अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर आज के सेशन में सुपर माइंड सुपर फ्यूचर में वी नो अबाउट इट हाउ टू चार्ज अवर माइंड. आज देखा जाए तो लोगों के पास जो है सब कुछ चार्जिंग के अलग अलग पॉइंट हैं. जैसे कि हमने बताया कि हम अपने माइंड को चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, अपनी कार को चार्ज कर रहे हैं पर माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं. तो माइंड को यदि चार्ज कर लें तो हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. अपने माइंड को चार्ज करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज पूरी दुनिया जो है वो एम के ऊपर डिपेंड है. एम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड है. कौन कौन से एम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मैनेजमेंट, मेडिकल, बहुत सारे एम है. पर दुनिया के तमाम एम, ऑल द एम डिपेंड ऑन वन एम इज माइंड. और माइंड डिपेंड है एक और एम के ऊपर जिसका नाम है मेडिटेशन. With the help of meditation, we can charge our mind. Meditation के लिए कहा जाता है कि all attention but no tension. It is called meditation. Meditation is very powerful tool
very powerful technique. With the help of that we can charge our mind. So आज हम कहते हैं कि जब एक बार देवताओं की मीटिंग हुई और मीटिंग में सेट किया गया कि यदि मनुष्य को पता चल जाए कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। कुछ देवता कहते हैं मनुष्य की सारी पावर को आकाश में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं उसको पाताल में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं उसे गुफा में छुपा देते हैं, पर कुछ इंटेलिजेंट देवता कहते हैं मनुष्य आकाश में भी जाएगा, पाताल में भी जाएगा, गुफा में भी जाएगा, पर खुद के अंदर नहीं जाएगा। तो भगवान ने सारी पावर हमारे अंदर छुपा दी है। भगवान ने हमारी सारी पावर हमारे अंदर है और हम भाग कर रहे हैं बाहर। कहते हैं हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे तो किन्होंने याद दिलाया था? जामवंत जी ने। हमारे अंदर भी ट्रेमेंडस पावर है, वी हैव ट्रेमेंडस पावर, वी हैव लॉट्स ऑफ पावर इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, इन इनसाइड अस, बट हम बाहर भाग रहे हैं। तो हमें कहाँ भागना है? अंदर भागना है। जहां पे भी हम प्रोग्राम करवाते हैं तो एक एक्सरसाइज जरूर करवाते हैं कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तो हम अपने भीतर जाए, एक बार सभी एक्सरसाइज करेंगे, मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को ओपन कर लेंगे, यदि सभी स्क्रीन पर सबको दिखा सकते हैं तो वो बेस्ट है। वीडियो ऑन कर रहे हैं, जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं और वो मेरे साथ करें तो बहुत अच्छा है। वीडियो ऑन कर लेंगे तो एक बार मेरे साथ सभी करेंगे ऐसे करके। मैं भीतर गया, सभी एक साथ करेंगे। मैं भीतर गया, मैं भीतर। अपने लाइफ, आप यदि अपनी माइंड को चेंज करना चाहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर जाना पड़ेगा। हमें पता है कि हीरो हीरोइन की लाइफ में क्या चल रहा है, हमें ये भी पता है कि देश में क्या चल रहा है, हमें ये भी पता है कि रसिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, पर वी डोंट नो अबाउट मेरे आंतरिक जगत में, मेरे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। आज इंसान मंगल में जीवन ढूंढ रहा है, पर उसके जीवन में खुद मंगल कहाँ है उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके जीवन में मंगल नहीं है। तो आज यदि देखा जाए तो लोग कहते हैं हार्ड वर्क कर रहा है। वाई वी आर डूइंग हार्ड वर्क? हम हार्ड वर्क क्यों करते हैं? हम मेहनत क्यों करते हैं? हम मेहनत क्यों करते हैं? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, चैट में लिखिएगा, वाई वी डू हार्ड वर्क? हम मेहनत क्यों करते हैं? हमारे साथ नए भाई बहने बहुत सारे जुड़े हुए हैं और आज का प्रोग्राम हमारे हैदराबाद शांति सरोवर से लाइव है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हम मेहनत क्यों करते हैं? चैट में लिखेंगे क्यों करते हैं मेहनत, लिखिए चैट में लिखें। पाने के लिए लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए। हम मेहनत क्यों करते हैं? हम मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, हमारे जीवन में सेटिस्फेक्शन हो, हमारे जीवन में पीस हो। पर हम भागते रहते हैं, हम भागते रहते हैं। पर उसका अल्टीमेट जो, कोई कहेगा मुझे बहुत पैसे चाहिए, चलिए ठीक है, करोड़ों रुपए चाहिए, मुझे आईफोन का मोबाइल चाहिए, मुझे मर्सिडीज कार चाहिए। तो देयर आर डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं माइंड चार्जिंग की, तो एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके थ्रू आपको बताना है कि इस बंदे ने अपने माइंड को कैसे चार्ज किया। बहुत ध्यान से इस क्लिप को देखिएगा और आपको बताना है कि इन्होंने माइंड को कैसे चार्ज किया है। क्योंकि आज हमें पता ही नहीं है, लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, पर कहाँ भाग रहे हैं उनको पता ही नहीं कहाँ भाग रहे हैं। तो हमें अपने माइंड को, और बाजू वाला भाग रहा है तो हम भी भाग रहे हैं, राइट? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो के द्वारा मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे हम अपने माइंड को चार्ज कर सकते हैं। जस्ट आई विल शो वन वीडियो।
ध्यान से देखेंगे। एक चार्ज बैटरी के संपर्क में दूसरी चार्ज बैटरी आएगी तो क्या होगा? चार्ज होगा। तो उन्होंने आज देखा जाए तो हम सब भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? क्योंकि बाजू वाला भाग रहा है। हमने कभी नहीं सोचा कि कैसे चार्ज करना है अपने माइंड को। माइंड को चार्ज करने के लिए सबसे बेहतरीन जो टेक्निक है वो मेडिटेशन। क्यों चार्ज करना है माइंड को? क्योंकि देखा जाए तो हम आज चारों तरफ से गाड़ी आ रही है, चारों तरफ से गाड़ी आ रही है। सोचिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। कोई सिग्नल नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, देयर इज नो ब्रेकर, देयर इज नो सिग्नल, देयर इज नो ट्रैफिक पुलिस इन दैट स्क्वायर। सो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट होगा, ठीक है, कोलिजन होगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे माइंड में भी एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं, 40,000 से 60,000 तक थॉट आते हैं, जिसमें 85% थॉट नेगेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं। 15% थॉट हमारे काम के होते हैं। तो हमें क्या करना है? थॉट की क्वांटिटी को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना है। क्वांटिटी को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना है। तो वो होगा मेडिटेशन से, कुछ टेक्निक से, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक से। माइंड को चार्ज करने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि नेगेटिविटी को डिलीट करना है और पॉजिटिविटी को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है क्राफ्ट। क्राफ्ट क्राफ्ट में सबसे पहले लेंगे सी फॉर कैंसल। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है।
सबसे पूरी टेक्निक का नाम है क्राफ्ट, CRAFT, C फॉर कैंसर। आपको जैसे कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, जैसे आपको कोई नेगेटिव थॉट देता है, ठीक है, नेगेटिव थॉट आपको यदि कोई दे रहा है तो आपको करना क्या है, आपकी चॉइस है कि उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ठीक है। यदि आपको कोई नेगेटिव थॉट दे रहा है तो आपकी वो चॉइस है कि उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। दादी जानकी जी कहते थे, किसी ने कहते थे कि एक कान से, कोई लोग कहते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो दादी जानकी जी कहते थे कि दिस इज अ राइट नहीं है। आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, बीच में सुपर कंप्यूटर है, दोनों कानों के बीच में भगवान ने इतना सुंदर ब्रेन दिया, पूरी प्रोसेसिंग होगी, अंदर जाएगा, डेटा आया, प्रोसेसिंग हुई, अंदर गया, क्या निकालेंगे। तो जो नेगेटिव जो है, सिर्फ पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव को लेना ही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव लेना है, अंदर डालना, नेगेटिव को क्रॉस करना है, कैंसल। एक छोटी सी स्टोरी से, मेंढक की स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है लाइफ में, मैं इसको सदा अपने पास रखता हूँ कि कुछ मेंढक थे और उनकी रेस शुरू होती है, और मेंढक की जब रेस शुरू होती है तो कुछ दर्शक मेंढक भी रहते हैं, देयर आर सम ऑडियंस, तो वो कमेंट करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि आगे तूफान है, आगे चोटियां हैं, आप डाउन हो जाओगे, आप गिर जाओगे, आप जम जाओगे, आप नहीं सरवाइव कर पाओगे, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत प्रॉब्लम है। पर कुछ मेंढक बढ़ते जाते हैं, कुछ रुकते जाते हैं, और अंत में एक युवा मेंढक उस सफलता के शिखर में पहुंचता है। उससे ज्यादा अनुभवी, उससे ज्यादा ताकतवर थे, पर अंत में एक युवा मेंढक ही उस सफलता के शिखर में पहुंचता है। तो उस मेंढक से पूछा जाता है कि भाई आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो वो बताता है कि मेरी सफलता का सीक्रेट है कि वो बहरा था, राइट। उसकी सफलता का जो सीक्रेट था वो लिख कर बताता है, वो बहरा था, उसने सुना ही नहीं। तो इफ यू वांट टू गो फर्दर इन योर लाइफ, आप यदि बहुत आगे जाना चाहते हैं, अपने शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू चार्ज योर माइंड, तो आपको नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा नेगेटिविटी को। आज हमने अपने माइंड को डस्टबिन बना लिया है। कैसे बना लिया है? आज बार बार नेगेटिविटी को हम अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी से, हमारे घर में, रेगुलर घर में हम कचरा कहाँ फेंकते हैं? कचरा जो झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, कचरा कहाँ फेंकते हैं? बताइए, कमेंट में बताइए, कचरा कहाँ फेंकते हैं? सभी बताइए फास्ट, कचरा कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं, राइट। डस्टबिन में हम फेंकते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं, और बाहर में डंप यार्ड में फेंकते हैं, ठीक है। पर आज देखा जाए, टेलीविजन से हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, नेगेटिविटी मिल रही है, और वो क्या है, एक अमृत है या कचरा है? टेलीविजन से जो मिल रहा है वो क्या है? कचरा है, ओके। समाचार पत्र में जो न्यूज आ रही है वो कौन सी आ रही है? नेगेटिव। ज्यादातर लोग पॉजिटिव को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं या नेगेटिव को? सोशल मीडिया में जो खबर वायरल हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है? ज्यादातर क्या ट्रेंड कर रहे हैं, राइट। तो इतनी सारी जो नेगेटिव कचरा है, यदि हमने लिया तो हम क्या बन गए? हम डस्टबिन बन गए, हम डस्टबिन बन गए। यदि इतना सारा कचरा होगा तो कचरे में बीमारियां होनी ही है, कचरे में बीमारियां होनी ही है। फिर कैसे चार्जिंग होगी? आप सोचिए कि यदि जंग लग जाए तो मैग्नेटिक इसका इफेक्ट कैसे आएगा? तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी हमें नेगेटिव दे, कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हमें स्ट्रेस में नहीं ला सकता। चॉइस हमारी है, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी, बुद्ध जी बैठे थे मेडिटेशन में, एक व्यक्ति आता है, बुद्ध जी को 1000 गालियां देता है, बुद्ध जी कोई रिप्लाई नहीं करते। फिर आता है, बुद्ध जी को 1000 गालियां देता है, बुद्ध जी कोई रिप्लाई नहीं करते। फिर आता है, बुद्ध जी को 1000 गालियां देता है, बुद्ध जी कोई रिप्लाई नहीं करते। फिर बुद्ध जी थोड़ी देर के बाद आंख खोलते और कहते हैं, आपने मुझे 1000 गाली दी पर मैंने नहीं ली। सपोज आपने मुझे एक तरबूज दिया, आपने मुझे एक संतरा दिया और मैंने नहीं लिया, तो किसके पास गया? बोले मेरे पास गया। तो इतने देर से आप मुझे अपशब्द दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे, मैंने नहीं लिया, तो किसके पास गया? तो बोले मेरे पास गया। तो तुरंत वो शाश्वत दंडवत प्रणाम करके उनका शिष्य बन जाता है। इसी प्रकार आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, व्यर्थ बोल रहा है, जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप उसका चिंतन नहीं करेंगे, देयर इज एक होता है स्टोरी, एक होती है घटना और एक होती है स्टोरी।
राइट। आप एक स्टोरी, एक होती एक घटना हुई, ठीक है, पर आपने जब उसकी स्टोरी बनाना शुरू किया तो प्रॉब्लम है। किसी ने कुछ बोल दिया, एक है घटना घटी, पर आपने जब स्टोरी बनाना से इसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, ये प्रोग्रामिंग करना शुरू किया, तब माइंड की नेगेटिविटी शुरू हो गई और माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग शुरू हो गई, माइंड डिस्चार्जिंग शुरू हो गया, राइट। और टेलीविजन से, सोशल मीडिया से एक रिसर्च में आया कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लगभग 18 साल की उम्र तक इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन, इतने नेगेटिव पिक्चर्स, इतने नेगेटिव इफेक्ट वो देख लेता है। 50,000 बार मर्डर के सीन, 50,000 अभद्र अश्लील व्यर्थ सीन, तो इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट उसके माइंड में हो जाता है, उसके माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है। आपके जीवन में कभी छोटा सा एक एक्सीडेंट हो जाए या छोटी सी कोई परिजन चले जाते हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव में कोई शरीर छोड़ देता है, किसी का निधन हो जाता है, तो वो चीज आपको सदा याद रहती है, वो घटना सदा याद रहती है। सोचिए इतने बार नेगेटिव पिक्चर बार 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 आपकी स्क्रीन पर आ रही है और वो फटाफट 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड में, 25 पर फ्रेम पर सेकंड की स्पीड में आपके रेटिना से अंदर जा रही है, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है, तो क्या इफेक्ट होगा। तो नेगेटिव को नहीं देखना है, नेगेटिव को नहीं लेना, कैंसर, फर्स्ट है कैंसर। दूसरा है आर, रिप्लेस। दादी गुलजार जी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी गुलजार जी कहते हैं कि आप जैसे कोई कैनल है, ठीक है, कोई नदी है, उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, आप चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आज तक चैनल चल रहा है सामने, आप आज तक चैनल है, तो आप ऐसा लाइफ में नहीं कह सकते कि अब आज तक आ रहा है तो क्या करूं। आप क्या करेंगे, इफ यू डोंट वांट टू सी आज तक, व्हाट यू विल डू, जस्ट चेंज द चैनल, है ना। आप क्या करेंगे, चैनल को चेंज कर देंगे। इसी प्रकार आपके माइंड में यदि नेगेटिव आ रहा है, तो आपको यदि कहा जाए कि एक बहुत बड़ी एक बकेट है, उसमें बहुत गंदा पानी भरा है और ऊपर टैप नल है, ठीक है, तो आप उस गंदे पानी को फेंक नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अच्छा पानी चालू कर देंगे। तो फोकस क्या करिए, अच्छे पानी के ऊपर करिए, रिप्लेस करिए, रिप्लेस, दिस इज द टेक्निक। यदि आप गंदे पानी पे फोकस करेंगे तो आपकी एक तो एनर्जी भी डाउन है, कॉन्फिडेंस भी डाउन है और नेगेटिव माइंडसेट भी है, और आप वो गंदगी को नहीं फेंक पाएंगे क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग बहुत लॉन्ग टर्म से हुई है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। एक किसी से हमने पूछा तो उनको बोला, सर आप जानते नहीं है मुझे कितना डिप्रेशन है। अच्छा, मैंने कहा कितना है, बोले बहुत डिप्रेशन है, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। अच्छा, मैंने कहा मैं टीवी जब देखते हैं तो नहीं, बोले उस समय नहीं रहता। अच्छा, बच्चों के साथ जब खेलते हैं तो बोले उस समय नहीं रहता, जब सोते हैं तो बोले उस समय नहीं रहता, तो किस समय रहता है, बोले जब मैं अकेली रहती हूँ ना तब। तो डिप्रेशन कहाँ है, मैंने कहा ये तो डिप्रेशन है ही नहीं, आप सोच सोच कर उसको नेगेटिव अपने आप ही डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो मन क्या है, माइंड मेकिंग मशीन है, ठीक है। माइंड मेकिंग जो अपना कुछ भी बना लेता, अपने आप कहानी बना लेता, अपने आप हमें परेशान करता रहता है, तो उसको कंट्रोलिंग आना चाहिए। उसको कंट्रोलिंग आने के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर फॉर रिप्लेस, नेगेटिव जैसे ही आए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगेगा, पर चौथे मिनट में पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। इट इज अ प्रोसेस, इट एक प्रैक्टिस करना है इसकी। उसके बाद है आर हो गया रिप्लेस, सी फॉर हो गया CRA, A फॉर अफर्मेशन, A फॉर अटेंशन। अफर्मेशन दीजिए पॉजिटिव, जैसा हम अपने माइंड को देंगे वैसा हम बनते जाएंगे। अफर्मेशन देना, पॉजिटिव अफर्मेशन, अटेंशन, A फॉर अटेंशन और A फॉर अफर्मेशन। कभी भी अपने माइंड को नेगेटिव कमांड नहीं देना। हमारे अंदर दो माइंड है, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में 10% पावर है, पर वो मालिक है। सबकॉन्शियस में 90% पावर है, पर वो गुलाम है। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। हम अभी सभी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट, जितने भी हमारे दिव्य आत्मा जुड़े हुए, हम अभी हम प्रैक्टिस हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, तो हाथ ऐसा कर लीजिए सभी। जब मैं पॉजिटिव कहूं तो आप उस कमांड को लेना, जब मैं नेगेटिव कहूं तो भूल से मत लेना, ठीक है। चलिए, मैं शक्तिशाली हूं, हाथ ऐसा करिए, मैं शक्तिशाली हूं, अंदर ही अंदर बोलना तथास्तु, हाँ मैं हूं, ठीक है। जब मैं नेगेटिव कहूंगा तो नहीं लेना। सभी वीडियो ऑन कर लेंगे, एवरीवन प्लीज, हाँ ओके।
जो भी हमारे हैदराबाद से पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो कर लेंगे सभी, और जितने भी सभी टीम जुड़े हैं वो भी कर लें। ओके। मैं शक्तिशाली हूं, तथास्तु। मैं महान हूं, भगवान मेरे साथ है, मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं जब पॉजिटिव कहूंगा तभी लेना, नेगेटिव में नहीं लेना, बाकी ऊपर रखिए। घर में महाभारत ही महाभारत है। मेरा क्या होगा? मैं बीमार हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कोई सुनता ही नहीं है, मेरा कोई सहयोगी ही नहीं है, कहीं मैं मर ना जाऊं, डायबिटीज हो गई है मुझे, मैं बहुत बेकार हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं भगवान की संतान हूं, भगवान मेरे साथ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा भविष्य उज्जवल है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं एंजल हूं, मैं गधा हूं। गधे में मत लेना, क्योंकि हम सब बोझ ले लेंगे ना तो गधे बन जाएंगे। ठीक है। मैं शक्तिशाली हूं, मैं महान हूं, भगवान मेरे साथ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा भविष्य उज्जवल है। तो जो कमांड आप लेंगे अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड से, जो भी आपने अंदर डाला सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस, वो होता है अलादीन, सबकॉन्शियस माइंड जिन, जो भी कमांड देंगे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। आपने बोला कि आप शक्तिशाली हैं, अंदर वाला जिन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, आप शक्तिशाली हैं, मैं आपको शक्तिशाली बनाऊंगा, आपकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करूंगा। आपने बोला मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अंदर वाला माइंड कहेगा जो हुक्म मेरे आप, उसके पास एक ही कमांड है, अंदर वाले सबकॉन्शियस माइंड के जिन, जो जिन है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म पॉजिटिव, हर चीज में जो हुक्म जो भी देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, वो अनएजुकेटेड लेबर है, जो भी आप कमांड देंगे वो एक्सेप्ट करेगा और रियल लाइफ में ला देगा। आपने दिया मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है कोरोना के बाद, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, मैं अब बिजनेस को फिर से नहीं रिफॉर्म कर पाऊंगा, रिफॉर्म कर पाऊंगी, मैं फिर से ग्रो नहीं कर पाऊंगी। अंदर वाला जो हुक्म मेरे आका, आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा, आप बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे और आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, आप दिवालिया हो जाएंगे। अंदर वाला माइंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर देगा। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देना है। ठीक है। क्या प्रोग्रामिंग देना है? मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं एक दिन इस कंपनी को पूरे वर्ल्ड में टॉप कंपनी में लिस्ट करवाऊंगा, भगवान मेरे साथ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए जैसी प्रोग्रामिंग करेंगे वैसा होगा। ऐसा ना हो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, ऐसा ना हो मैं, जैसा नेगेटिव नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है। बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, पेपर बहुत टफ आने वाला है, मैं एग्जाम लिख ही नहीं पाऊंगा, एग्जाम बहुत टफ आने वाला है, मैंने तो याद ही नहीं किया, जो हुक्म मेरे आका, आपने जो भी याद नहीं किया पक्के में वही आएगा और आपका एग्जाम बहुत टफ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव कमांड मत देना अपना। पॉजिटिव कमांड कैसे देना है कि मैंने जो पढ़ा है वही आएगा और मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है, जो पढ़ा मुझे याद रहेगा। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना है। तो ये हमने सबसे पहले देखा, सी फॉर कैंसल, आर फॉर रिप्लेस, ए फॉर अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन कब देना है? देखिए कब देना है। सबसे पहले जैसे ही सुबह उठते हैं, मॉर्निंग, इसको हम अमृत बेला कहते हैं, उस समय पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना है। और हर घंटे में 1 मिनट, हर घंटे में 1 मिनट जब मेडिटेशन करते हैं तब भी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना है। पानी पीते हैं, जब पीते हैं पानी तो उसमें भी पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं महान हूं, बहुत पॉजिटिव, जो भी चाहिए आपको, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका काउंटर थॉट, ठीक है, उसका काउंटर थॉट उसमें डालना है, पानी में डालना है और खुद भी सबकॉन्शियस माइंड में डालना है काउंटर थॉट। मैं शक्तिशाली हूं, मैं, मेरा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, भगवान मेरे साथ है, फिर पानी पीना है। ठीक है। इस प्रकार से पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होगी, क्योंकि पानी जो है हमारे थॉट को फास्ट रिसीव करता है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल हुए, डॉक्टर इमोटो मसारो, कभी उसके ऊपर भी हम क्लास कराएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है CRAFF, फोकस, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, कहां जाना है? सामने जाना है। देखिए हमारा फोकस कहां होना चाहिए? भूत में फोकस है और भविष्य में फोकस है, भूत में फोकस है और भविष्य में फोकस है, प्रेजेंट में फोकस नहीं है। भूत में फोकस है, भविष्य में फोकस है, प्रेजेंट में फोकस नहीं है। देखिए इसके लिए कहते हैं
कि भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है। यदि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, कोई दुख की बात आई, कोई चिंता की बात आई, वो कहाँ थी बताइए? यहाँ थी, पास्ट में थी। ठीक है, कहाँ थी? पास्ट में थी। दुख की बात, चिंता की बात कहाँ थी? पास्ट में। जो नए भाई हैं, कोई नए जो जुड़े हुए हैं वो बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम नए नए। रवि कुमार जी, आर यू गेटिंग मी? आप सुन पा रहे हैं जी? तो जो भी प्रॉब्लम थी हमारी अभी वर्तमान सिचुएशन में, अब अभी देख, मैंने आपका माइक ऑन किया है, राइट? जो भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम है वो कहाँ थी? वो अभी अभी है, जो हुई है आपके साथ, जो दुख हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो पास्ट में है या अभी है बताइए? जो हुआ घटना वो पास्ट में है या अभी है? माइक चालू कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट। पास्ट में है। पास्ट में है ना। जो भी दुख हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने नेगेटिव कहा, किसी ने अपशब्द बोले, किसी ने ग्लानि की, किसी ने निंदा की, वो कहाँ है? पास्ट में। यहां है या यहां है? यहां है या यहां है बताइए? पास्ट में है या प्रेजेंट में है? सभी बताइए। पास्ट में। ठीक है, पर जो टेंशन जो है, टेंशन जो है, वो टेंशन यहां क्यों है? अनीता रुंगटा जी, जो प्रॉब्लम है वो पास्ट में है, राइट? तो टेंशन यहां क्यों है? टेंशन बार बार यहाँ, हम उसी को सोचते रहते हैं। या राइट, हम इस पास्ट की बात को बार बार सोचकर इसको यहाँ ला रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, और एकदम सामने वही आ रही है। इसको क्या करना है? पास्ट इज पास्ट, इसलिए भगवान कहता है पास्ट मतलब बीती सो बिंदी, इसको कहते हैं भूत। भूतकाल मतलब जो बीत गया, भूत आत्मा निकल गई, भूत हो गई, पास्ट हो गई, राइट? तो भूतकाल को हटाना है। यहाँ हमारा 50% फोकस है। अच्छा, और यहाँ हमारा फ्यूचर में भी 50% फोकस है कि कल क्या होगा, अब परमाणु यहाँ ना गिर जाए, बम यहाँ ना गिर जाए, लड़ाई हो रही है, कैसा होगा, ये होगा है ना, मेरा फ्यूचर क्या होगा, बीमार ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, सेटअप। एकदम से कोरोना आया, सब जीरो कर दिया, बता दिया लोगों को कि कुछ नहीं आप साथ में लेके जाएंगे, साथ में आपके जाएंगे तो पुण्य और आपके जो भी आपने जाने अनजाने में पाप किए वो, तो कोरोना ने सिखा दिया। तो एक तो पास्ट में है एनर्जी, एक है फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं है। पास्ट में 50, फ्यूचर में 50, प्रेजेंट में 0। रिजल्ट कितना आएगा? 0। रिजल्ट आएगा 0, माइंड चार्जिंग ही नहीं हो रही। तो क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, व्हाट यू विल हैव टू डू, जस्ट ग्रैब द फुल फोकस फ्रॉम past and future and focus on present, then you will get what you want in your life। आपको चारों तरफ से खींच कर लाना पड़ेगा अपने फोकस को, और प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ेगा। कहते हैं लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, और सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता ना, फोकस नहीं होता, तो उसके जीवन में उसकी उम्र भी कम होती है। और जिसके जीवन का कोई लक्ष्य होता है तो उसकी उम्र भी ज्यादा होती है, उसके आगे कोई दीवार नहीं होती, और होती भी है तो वो क्रॉस कर लेता है। लक्ष्य रहना चाहिए। अभी यदि आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य जैसे आपको पता नहीं कि कहाँ जाना है, अभी हैदराबाद जाना है मुझे, हैदराबाद शांति सरोवर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम से जाऊंगा, है ना। फ्लाइट से जाना है तो यहाँ से जाना है, यहाँ जाना है। अब मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो मैं कहीं पे भी बैठ जाऊं, पूना की गाड़ी में बैठ जाऊं, चाहे कलकत्ता की गाड़ी में बैठ जाऊं, लक्ष्य ही नहीं है। तो लक्ष्य सेट हो जाता है तो एनर्जी उस तरीके से ड्राइव करती है। ठीक है ना। तो जहां हमारा फोकस होता है वहीं हमारी वाइब्रेशन, जहां हमारा मन होगा, कहते हैं ना, जहां हमारा मन होगा वहां फोकस करना है हमें, प्रैक्टिकल में उस चीज पर फोकस करना। फोकस ना इधर ना उधर, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, यहाँ देखना है, फोकस होना चाहिए। तो इसके लिए एक टेक्निक यूज करेंगे जिसका नाम है WCM। मेडिटेशन के दौरान इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, WCM, वॉच कैच मैच। सबसे पहले जब भी मेडिटेशन करें, फोकस को कैच करने के लिए, फोकस को मैच करने के लिए, देखें मेडिटेशन करते हुए कि मेरा मन है कहाँ। बुद्धि क्या है? वीडियो कैमरा है। बुद्धि वीडियो कैमरा है, वो जहां पर भी उसका फोकस रहेगा। सपोज आंखों को बंद कर लीजिए, फोकस देखते हैं अभी हम। आंखों को बंद, गहरी लंबी सांस,
3 2 1 कहूंगा, घर में जाएंगे। 3 2 1 घर में जाएं, फ्रिज को खोलें, फ्रिज में कुछ नींबू रखे हुए हैं, बहुत खट्टे नींबू निकालें और उसके खट्टे रस को अपनी जीभ पर निचोड़िए। 10 ड्रॉप्स काउंट करके, विजुलाइज करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ इमलियां भी रखी हुई हैं, देखिए इमलियां। इमलियों को जीभ में घुमाना है, घुमाइए। पकी इमली, बहुत ही खट्टी पकी इमली, घुमाइए। 1 10 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8। पानी पूरी का पानी है, उसको भी पीना है सिप सिप करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। नींबू भी है, नींबू की बूंदे भी देखिए जीभ पर। पानी पूरी भी है, उसको टेस्ट को महसूस करिए। फील द टेस्ट। सलाइवा आ रहा है, लार आ रही है, पानी आ चुका है। अब जैसे ही मैं 3 2 1 कहूंगा, आप यहां पर आ जाएंगे फोकस। 3 2 1 ओपन योर आईज। किस किस को महसूस हुआ जीभ में पानी आया था? रेज योर हैंड, हाथ उठाइए। ओके, तो कहाँ है अभी आपका फोकस? कहाँ था? नींबू के ऊपर। तो आपने किसके साथ मेडिटेशन किया? नींबू के साथ आप कनेक्ट हो गए। आप एयरटेल के साथ कनेक्ट होंगे तो एयरटेल का नेटवर्क आएगा, आप जियो के साथ कनेक्ट होंगे तो जियो का नेटवर्क आएगा। आप यदि आप अग्नि के साथ कनेक्ट होंगे तो अग्नि की जो तपन है वो आएगी। आप पानी के साथ कनेक्ट होंगे तो पानी की जो शीतलता वो आएगी। सूर्य के साथ कनेक्ट होंगे तो सूर्य की जो पावर है वो आएगी, आप महसूस कर पाएंगे उसकी गर्मी को। एसी के साथ कनेक्ट होंगे तो उसकी ठंडक को महसूस कर पाएंगे। नींबू के साथ कनेक्ट होंगे तो आप उसकी खट्टेपन को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने किया। इसी प्रकार जब नींबू के बारे में सोचने से जीभ में पानी आ सकता है, तो परमात्मा के बारे में सोचने से शक्तियां आ सकती नहीं आ सकती? बताइए, भगवान के बारे में सोचने से आ सकती है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल। यदि आपके नींबू के बारे में सोचने के बाद जीभ में पानी आ रहा है, तो सोचिए आप बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं, आप बहुत अच्छे योगी हैं, आप बहुत अच्छा ध्यान कर सकते हैं। सिंपल है। ना आपको एक टांग में खड़ा होना, ना उल्टा करना, ना शीर्षासन करना है, ना कोई आसन करना है। सिंपल है। आत्मा है, मैं आत्मा हूं, और आत्मा समझकर भगवान को याद करना है। ठीक है ना? कैसे? किसी ने बोला कि सर आप आत्मा कैसे हैं? आप बोलते हैं आत्मा है। मैंने कहा आपके बॉडी का एक अमित नाम का एक बंदा था, तो बोलता है सर बहुत बड़ा स्टेज था, 10,000 लोग थे वहां। कैसे सर, कैसे बताएंगे? मैंने कहा आपकी कौन सी बॉडी का नाम अमित, पार्ट का नाम अमित है? बोले मेरे पूरी बॉडी का नाम। मैंने कहा ठीक है, चलो हाथ निकाल लिए जाए दोनों तो अमित रहोगे। बोले बिल्कुल रहूंगा। पैर निकाल दिए जाए तो बिल्कुल रहूंगा। कान निकाल दिए जाए तो बोले बिल्कुल रहूंगा। मुख काम नहीं करेगा तो बिल्कुल रहूंगा। आंख काम नहीं करेगी तो बिल्कुल रहूंगा। ब्रेन ब्रेन डेड हो गया, 99% कोमा वाले भी जिंदा रहते, बोले रहूंगा। अच्छा, हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन है, बोले रहूंगा। मैंने कहा सारे बॉडी के ऑर्गन खत्म हो रहे हैं पर आप कैसे जिंदा हो? बोले मैं आत्मा हूं तभी जिंदा हूं। तो हम कौन है? हम एक शरीर नहीं है जिसमें एक आत्मा है, पर हम एक आत्मा है जिसका एक शरीर है। हम आत्मा है, हम एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, परमात्मा के बच्चे हैं। ठीक है, एक वीडियो के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे हम आत्मा है, तो हम कैसे हैं। एक वीडियो के द्वारा हम आपको क्लियर कराएंगे। उसको वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि हम कैसे आत्मा कैसे हैं। तो आपको पूरा आत्मा का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले तो इस क्लिप को देखिए। ये हमारी पूरी बॉडी है। बॉडी के अंदर क्या है? बॉडी के बाद में है मांसपेशी, उसके बाद हड्डी, स्केलेटन। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में हम यदि देखेंगे, अब देखिए आत्मा।
हम एक शरीर नहीं है जिसमें एक आत्मा है, पर हम एक आत्मा है जिसका एक शरीर है। हम एक आत्मा है। और जब हम आत्मा समझते हैं, जैसे कि मैंने उनसे पूछा, अमित जी से, मैंने कहा गाय का बछड़ा कैसे होगा? बोले गाय का जैसा होगा सर। तोते का बच्चा होगा, वो कैसा होगा? तोते का जैसा है। तो मैंने कहा हम एक लाइट है, हम एक एनर्जी है, तो हमारा पिता कैसा होगा? बोले हमारे जैसा ही होंगे, सुप्रीम सोल होंगे। तो हमारे पिता कौन है? सुप्रीम सोल, सुप्रीम एनर्जी, परमात्मा, जो मेरे यहाँ पर बाजू में दिख रहे हैं, सुप्रीम सोल, परमात्मा। तो उनसे हम जब कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन में, तो वो शक्ति मिलती है। हम आइए, अब हम 7 मिनट बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। चलिए, सब तैयार हैं? चलिए, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, दिस इज द कंसंट्रेशन पोस्चर। रिलैक्स हो जाएंगे कंप्लीट। देखें, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। पैरों की अंगूठी, पैरों की अंगुलियां, घुटने, कमर, पेट, दोनों हाथ, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। पूरा शरीर रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स। चमड़ी, मांस, हड्डी, मैं नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। पैरों के अंगूठे से लेकर मस्तक से पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। पवित्रता की, स्वच्छता की, सफेद कलर की सांसें अंदर जा रही है। पूरे ब्रेन को चार्ज करते हुए। बाहर, नेगेटिविटी की काली सांसें बाहर। पवित्रता की, स्वच्छता की सांसें अंदर, नेगेटिविटी की काली सांसें बाहर। अब देखिए, दोनों प्रकृति के बीच में एक सितारा है, ज्योति सितारा, और भगवान मेरे सिर के 1 फीट ऊपर, और उनसे हजारों कॉस्मिक एनर्जी, परमात्मा की ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। Receive the cosmic energy from Supreme Soul and feel you are fulfilled with positive energy. You are fulfilled with lots of positive energy. जो चित्र सामने दिखाई दे रहा है वैसा ही विजुलाइज करेंगे अपने शरीर के ऊपर।
पूरा अंग अंग, जो भी रेड पैचेस हैं, नेगेटिविटी है, दुख है, चिंता है, ब्लॉकेज हैं, वो सब क्लीन हो रहे हैं पवित्रता की शक्तियों की पॉजिटिव रेज से, गॉडली हीलिंग रेज से। पूरा शरीर, लाइट का शरीर चार्ज हो रहा है, चार्ज चार्ज। फील करें परमात्मा की असंख्य शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें लगातार मेरे ऊपर आ रही हैं। पूरा शरीर चार्ज हो रहा है। दोनों हथेली मलेंगे और महसूस करें भगवान की सारी किरणें हाथों में, पवित्रता की शक्तियां हाथों में। आंखों में लगाएं, एनर्जी अंदर जा रही है। वंस अगेन, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। एनर्जी अंदर। हृदय तंत्र में, पूरी बॉडी में पवित्रता की किरणें। जप करें पूरा लाइट का शरीर, पवित्र शक्ति स्वरूप, चार्ज, शांति। ओम शांति। यस सिस्टर। For such a inspiring, motivating talk and मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से आपने हम सबको कराया। अभी तक तो चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस, वी कैन unmute ourselves and we can ask.
तो चलिए फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करें। क्वेश्चन से परे हैं सभी। हाँ, क्योंकि जो मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस था वो हमें ऐसी स्थिति में ले जाता है जब हम क्वेश्चन से परे हो जाते हैं, तो प्रश्नों से पार हो गए हैं सभी। परफेक्ट। अच्छा, वी हैव अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। जो भी हमारे आज नए भाई बहने जुड़े हैं वो हमारे शांति सरोवर हैदराबाद, हमारा जो यूट्यूब चैनल है शांति सरोवर हैदराबाद, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने भी संडे टॉक के प्रोग्राम्स हैं ये रिकॉर्डिंग्स उसमें अवेलेबल है। तो मोर देन 100 टॉक्स हमारे पास उसमें अवेलेबल हैं, तो आप पीछे के सेशंस को भी सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारे अपकमिंग डिटेल्स चाहिए, अपकमिंग जैसे क्या प्रोग्राम्स होंगे, तो उसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए है आप कहाँ रजिस्टर करेंगे, तो उसका जो लिंक मीन्स जो वेबसाइट है दैट इज www.shantisarovar.org। तो आप इस पे अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनका अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। और आप यूट्यूब चैनल जो शांति सरोवर हैदराबाद है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू अगेन, सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक्स, और एक बार फिर से शक्तिराज ब्रदर को भी थैंक्स। थैंक यू। ओम शांति।